On the occasion of Mahavir Jayanti, Sleepy Classes is offering all of you 20% off on all its courses, valid just for tomorrow. So, कोई भी course pertaining to GS, Sociology, PSIR for 2026 appearing aspirants or prelims for 2025 appearing aspirants is on 20% discount. In fact, हमारा last batch of rapid revision is also starting from 21st April, तो वो भी कल के लिए 20% off पर होगा. So I would suggest make the most of this डिस्काउंट. ऑल्सो अगर आप 2025 के लिए अपेयर कर रहे हैं, सो मेक द मोस्ट ऑफ दीज फ्री वीडियोस ऑल्सो, जिसमें हमने इन्वायरमेंट के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, इनफैक्ट बाकी सब्जेक्ट्स के भी. एंड वी आर ऑल्सो हैविंग 2011 टू 2024 ऑनवर्ड्स PYQs डिस्कस्ड इन डिटेल ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. सो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा. Now coming back to the questions, so we are going to cover PYQs and 6 questions हम discuss करेंगे. You can mention your score by the end of the video in the comments below. किसी प्रकार का डाउट है तो वो भी आप comments में मुझसे पूछ सकते हैं. So पहला जो सवाल है, that is related to Congo Basin. Which of the following is a part of Congo Basin? Cameroon, Nigeria, South Sudan and Uganda. So you can pause and mark your answer. The correct answer is Cameroon. So अगर आप मैप पे देखोगे तो Cameroon western part of the Congo basin is having Cameroon. So it is a part. In fact जो एक ऑप्शन है Uganda, वो भी काफी क्लोज है, but that is not a part. ठीक है, it is not a part of the Congo basin. Now, if we look at the countries which are a part of the Congo Basin, so we have Cameroon, Equatorial Guinea, Gabon, Republic of the Congo, Democratic Republic of Congo, Central African Republic. Sudan, Uganda, they are not the part of it. Even Nigeria also, ठीक है, तो यहाँ पर है ये part नहीं है. उसके बाद another important thing that is in news is regarding Congo peatlands. अब Congo peatlands आपको They are the world's largest tropical peatlands और ये आपको central part of the Congo basin में मिलते हैं, Republic of Congo and Democratic Republic of Congo में. अब ये ना न्यूज़ में इसलिए रहते हैं because they are a very huge carbon sink. They are storing a lot of carbon dioxide. But अगर हम इन्हें preserve या conserve नहीं करेंगे तो ये carbon sink से बदल कर कार्बन सोर्स भी बन सकते हैं, एंड दैट वुड बी डेट्रीमेंटल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर द एनवायरनमेंट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज when we talk about Democratic Republic of Congo, the eastern part of DRC, it is associated with minerals, जिनको blood minerals, conflict minerals कहा जाता है, because this part of the world is marked with conflicts, human right violations. So यहाँ पर but क्योंकि ये minerals मिलते हैं and they supply them across the world, so it is an important region. But since they are obviously marked with a lot of issues, तो इनको blood minerals या conflict minerals कहा जाता है. 3 T's भी हम लिख देते हैं, 3 TGs भी लिख देते हैं. 3 T's में हमारे पास टैंटलम, टिन एंड टंगस्टन आता है, और अगर 3 TGs हैं तो G से गोल्ड भी ऐड हो जाता है. ऑल्सो जो कॉन्गो बेसिन है ना, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर अमेजोन, और इसी वजह से इसे लंग्स ऑफ द अफ्रीका भी कहा जाता है, बिकॉज दे आर टेकिंग इन अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाया फोटोसिंथेसिस एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन. सो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर भी आप ध्यान रखिएगा. इनफैक्ट जब हम कॉन्गो पीटलैंड्स की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड्स है. अब ना दुनिया में अगर हम पीटलैंड्स को कंपेयर करें फॉरेस्ट के साथ, तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड दोनों स्टोर करके रखते हैं, लेकिन फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू पीटलैंड्स. पीटलैंड्स दुनिया में 17% के करीब ही प्रोटेक्टेड एरियाज के अंडर आते हैं कंपेयर टू फॉरेस्ट विच आर क्लोज टू 40 to 50%. तो इसलिए पीटलैंड्स की कंजर्वेशन की भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती है. Then this question is regarding a very simple concept कि कौन सा रामसर साइट कौन से स्टेट में है, आपको बताना है कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं.
देखिए रामसर साइट्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वन थिंग विच यू कांट मिस इज कि कौन सी रामसर साइट कौन सी स्टेट में है। टोटल रामसर साइट्स की अगर हम बात करें, सो वी हैव 89, जिसमें सबसे ज़्यादा 20 तमिलनाडु में है। एंड यू हैव टू रिमेंबर द बेसिक्स ऑफ रामसर साइट्स ऑफ कोर्स, कि इट डिराइव्स फ्रॉम रामसर कन्वेंशन, जो कि 2 फरवरी को साइन की गई थी 1971 में इन द रामसर सिटी ऑन द कैस्पियन, ऑन द बैंक्स ऑफ कैस्पियन सी इन ईरान, राइट। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाया जाता है। एंड what is the criteria for inclusion in the Ramsar sites, और इनफैक्ट वेटलैंड सिटीज़ भी अभी न्यूज़ में है। कौन सी 2 सिटीज़ को वेटलैंड सिटीज एक्रेडिटेशन मिला है इंडिया में, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। तो वो सब आपको पता होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कौन सा रामसर साइट कौन सा स्टेट में है, थोड़ा सा ये आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये रिपीटेडली क्वेश्चन आया है। खैर, होकेरा पंजाब, रेणुका हिमाचल, रुद्रसागर त्रिपुरा, सस्तम कोटा तमिलनाडु। सो यू हैव टू टेल मी विच आर करेक्टली मैच्ड। सो होकेरा इज इन JNK। पंजाब में 6 रामसर साइट्स हैं, बट होकेरा इज नॉट वन ऑफ देम। रेणुका इज इन हिमाचल, रुद्रसागर इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में ना वैसे भी बहुत कम रामसर साइट्स हैं, ठीक है। जैसे असम में दीपौर बील है, रुद्रसागर त्रिपुरा, मणिपुर में लोकतक लेक है, तो बहुत ही कम है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इज ईजियर टू रिमेंबर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रेणुका लेक, दैट इज द स्मॉलेस्ट रामसर साइट, तो वो आपको पता होना चाहिए। सस्तम कोटा इज इन केरला। सो दीज 2 are incorrect, these 2 are correct, so the correct answer is only 2 pairs. But like I have mentioned, do study the Ramsar sites, the name of the Ramsar sites and the states they belong to. Then third question है, which of the following protected areas are located in the Kaveri basin? Nagarhole, Papikonda, Satyamangalam, Wayanad. अब ना अगर आपने थोड़ा बहुत भी आप फॉलो करते हो प्रोटेक्टेड एरियाज को, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज कावेरी बेसिन अगर हम देखें तो नागरहोल, सत्यमंगलम, वायनाड, they all belong to Kaveri basin. You can actually exclude Papikonda. Papikonda is in Andhra Pradesh. Papikonda is not related to Kaveri basin, but it is related to Godavari basin. The other 3 are related to Kaveri basin. और ना पापीकोंडा न्यूज़ में रहा है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, सो वी हैव अ कोंडा रेड्डी ट्राइब विच इज़ ऑल्सो अ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTGs। इन्होंने ना बताया था कि पापीकोंडा में एक इंडियन लॉरल ट्री है जो अपने बाग में पानी स्टोर करता है, एंड यू कैन एक्चुअली गेट दैट ड्यूरिंग द समर्स। एक पेड़ अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 लीटर पानी स्टोर करता है, और उसकी ना वीडियो भी वायरल हो गई थी। सो दैट इज़ वाई पापीकोंडा, आपको आइडिया होगा कि वो आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में कावेरी बेसिन तो नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, एंड दिस गेट्स एक्सक्लूडेड। Then the other 3 become a slightly easier for you to capture. जैसे नागरहोल we all know is in Karnataka, Satyamangalam Tamil Nadu, and Wayanad in Kerala, and all of them are related to Kaveri. In fact, जो नागरहोल और जो वायनाड है, they are Kabini river tributaries, and your Satyamangalam is भवानी, ठीक है। उसके बाद वायनाड के साथ ना एक NH 766 एसोसिएटेड है, जो कि वायनाड और बंदीपुर इन कर्नाटका के थ्रू पास करता है, और नाइट टाइम में ट्रैफिक इज बैंड। इसके ऊपर भी ये न्यूज़ में रहता है कि राहुल गांधी एंड नाउ प्रियंका गांधी आर एक्चुअली वाउचिंग कि इसका जो है नाइट टाइम जो ट्रैवल बैन है उसको हटा दिया जाए, बिकॉज दिस NH 766 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोड विच कनेक्ट्स केरला एंड कर्नाटका, राइट। सो इस वजह से भी ये न्यूज़ में रहता है वायनाड। सत्यमंगलम, आई थिंक वी ऑल नो, इज़ अ इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, एंड नागरहोल वी ऑल नो इज़ रिलेटेड टू काबिनी, ठीक है। सो एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द among the following tiger reserves, which one has the largest area under the critical tiger habitat? So you have Corbett, Ranthambore, Nagarjuna Sagar, Srisailam, and Sundarbans.
अब देखो, लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इज ऑल्सो नोन एज कोर एरिया. इनफैक्ट टाइगर रिजर्व की जब हम बात करते हैं, सो यू हैव अ कोर एरिया which is mostly a protected area in the form of a sanctuary, a wildlife sanctuary, right? Or you can have a national park. और जो बफर एरिया होता है वो मिक्स्ड यूज एरिया होता है. ठीक है, तो कोर एरिया को ना क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी कह दिया जाता है. सो दैट मीन्स दैट वी ऑल नो दैट टाइगर रिजर्व डिराइव इट्स जेनेसिस फ्रॉम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी वहीं से डिराइव करता है. क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो FRA 2006 से एसोसिएटेड है. वो टर्म उस एक्ट में मेंशन्ड है. तो इसमें एक तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है. CTH इज कोर एरिया ओनली. अब यहाँ पर लार्जेस्ट एरिया की बात की गई है, तो नागार्जुना सागर श्रीशैलम इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व. इट इज हैविंग द लार्जेस्ट कोर एरिया. ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी आसान है. इट इज नेम्ड आफ्टर नागार्जुना सागर एंड श्रीशैलम डैम. ठीक है, नल्लामला हिल्स में है, आंध्र प्रदेश में. लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, लार्जेस्ट कोर एरिया है. अब ना जब हम नागार्जुना सागर श्रीशैलम की बात करते हैं, एक तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है और लार्जेस्ट कोर भी है. दूसरी चीज पता है क्या है? टाइगर रिजर्व जहां पे मैक्सिमम लेपर्ड्स की पॉपुलेशन है, वो भी हमारा नागार्जुना सागर श्रीशैलम है. जब हम टाइगर्स की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स आपको मध्य प्रदेश स्टेट में मिलते हैं, है ना. और एक टाइगर रिजर्व जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, दैट इज़ कॉर्बेट इन उत्तराखंड. ठीक है, टाइगर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन टाइगर रिजर्व जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं वो है कॉर्बेट, राइट. और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है 9. जब हम लेपर्ड्स की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स अगेन मध्य प्रदेश में है. एंड सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स अगर एक टाइगर रिजर्व की बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स है, तो वो है नागार्जुना सागर श्रीशैलम. सो दिस इज अनदर फैक्ट अबाउट दिस टाइगर रिजर्व दैट यू शुड टेक नोट ऑफ एंड यू शुड नॉट फॉरगेट. उसके बाद यहाँ पर बाइजन, जिसको इंडियन गौर भी कहा जाता है, वनरेबल है, शेड्यूल 1 स्पीशीज है लेकिन वनरेबल है, को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात भी की जा रही है. तो नागार्जुना सागर श्रीशैलम न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट. Then fifth question है musk deer. Which of the following are the most likely places to find musk deer in its natural habitat? Ascot, Gangotri, Kishanpur and Manas. अब अगर हम मस्क डियर की बात करें, इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड. IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड. मेल मस्क में, मस्क डियर में मस्क ग्लैंड्स होते हैं जिससे कि परफ्यूम्स में, जो परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है, उनके मस्क को मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज कस्तूरी. और उस वजह से इनकी पोचिंग भी होती है. तो ना स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड इज़ अ बिग गिव अवे कि ये आपको उधर ही कहीं मिलेगा. एंड सिंस दो ही हैं, दो ही करेक्ट हो सकते हैं, तो यू कैन स्टिल गेट एन आइडिया कि एस्किट एंड गंगोत्री. ठीक है, एस्किट एंड गंगोत्री. किशनपुर यूपी में है, मानस असम में है. और मानस इज लाइक रॉयल मानस भूटान और मानस इंडिया के बीच में मानस रिवर है, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. एंड मानस में अगर हम एक स्पीशीज़ जिससे हम मानस को एसोसिएट करते हैं, ऑफ कोर्स दी अदर स्पीशीज़ जो असम में मिलती हैं, जैसे वन हॉर्न राइनो एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो है ही. पिग्मी हॉग की वाइबल पॉपुलेशन आपको मानस में मिलती है, तो मानस के बारे में वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा. ठीक है, सो ये आपको ना कश्मीर, कुमाऊं विच इज उत्तराखंड एंड सिक्किम, बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन आर फाउंड इन उत्तराखंड. इट इज इन फैक्ट द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड ऑल्सो. शेड्यूल 1 एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1, इट इज इंडेंजर्ड. ठीक है, देन लास्ट है इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क. It is spread over 2 districts. There is no human habitation. It is one of the natural habitats of Great Indian Bustard. So 3 statements है, आपको बतानी है कौन सी सही है. देखो, it is one of the larger protected areas spread over जैसलमेर एंड बर्मा. तो 2 districts तो हैं. And Desert National Park is known for Great Indian Bustard. Now, bustards are terrestrial birds, which are large terrestrial birds, right?
एंड जो आपको ड्रायर एरियाज में मिलती है ना, यू हैव बंगाल फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर 3 इंपॉर्टेंट बस्टर्ड्स दैट वी शुड नो. ऑल ऑफ देम आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ठीक है. और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज इन फैक्ट द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, और किसी टाइम पे हमारे नेशनल बर्ड की रेस में भी ये थी. राइट. तो बहुत ही अभी कम नंबर्स हैं इनके, बहुत ज़्यादा नंबर्स तो नहीं है. तो राजस्थान में ये मिलता है डेजर्ट नेशनल पार्क में, तो ये भी सही है. ये गलत है, ह्यूमन हैबिटेशंस भी हैं. तो हमारा जो आंसर है वो 1 एंड 3 हो जाता है. राइट. सो दैट वाज रिगार्डिंग टुडेज प्रीमिक्स. ऑल्सो लाइक आई सेड कि हमारा 21 अप्रैल से लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है रैपिड रिविजन का. 15 दिन के स्पैन पे ये चलेगा. इट इज़ प्राइज्ड एट 3,999, बट अगर आप रैपिड 500 कोड यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली आपको 500 ऑफ मिल जाएगा. लेकिन कल के लिए अगर आप मोक्षा 20 यूज़ करते हो तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा. यू विल गेट इट एट अराउंड 3,200, राइट? So that was all from my end. Do mention your score in the comments below and मिलते हैं जल्द ही.